Hello students, as you know that this year Navodaya has entered new topic of environment. Previously there was no environment in exam. Now from this year they have added environmental studies, and from those that syllabus there will be 20 questions asked. So we are starting those questions one by one. Now see here, we have taken first section. The section 1 is plants and animals, right? So we are starting the questions from plants and animals. So let us go with first question. Which part of the plant absorbs water and minerals from the soil? सॉइल में से कौन सा पार्ट प्लांट का जो है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है, मीन्स उसमें से रहता है? तो जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है वो डेट पार्ट इज व्हाट? डेट पार्ट इज रूट्स. ओके, सो आंसर इज रूट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड. प्लांट की फूड बनाने की प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. In the presence of sunlight and carbon dioxide, plants make food, that is called photosynthesis. Now question number 3 is which gas do green plants absorb during photosynthesis? जब photosynthesis का प्रोसेस होता है प्लांट का जो फूड बनाने का, तो कौन सा गैस यूज होता है? तो ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. So they use carbon dioxide. Okay, if you know the definition of photosynthesis, you can find the answer in that also. Now question number 4 is the green pigment present in leaves that helps capture sunlight is. Which is green pigment present in leaves? जो leaves है उसका green color किसके लिए होता है? तो because of chlorophyll. तो answer is chlorophyll. Okay, not hemoglobin. Hemoglobin is for blood. Okay, not carotenoid, no exophil, only chlorophyll. Question 5 is which of the following is an insectivorous or carnivorous plant? A. Pitcher plant, B. Rose, C. Banyan tree, or D. Tulsi. Okay, insectivorous means the plant which is eating insects. Okay, that is called carnivorous, means non-vegetarian plant. Which plant? So rose is not, banyan is also not, and tulsi is not there. So answer is A. Pitcher plant. Okay, so these are the 5 questions. Now we will go for another 5 questions. Now see here. Question number 6. Question 6 is small pores present on surface of leaves for gas exchange are called. If you observe the leaves, okay, on those leaves you can see some small pores, some type of holes like something, that is called what? A. Stomata, B. veins, C. petals, and D. roots. So here answer is A. Stomata. जो लीव्स के ऊपर जो होल जैसा होता है, जो राउंड शेप में जो गैस एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है, डेट इज कॉल्ड स्टोमाटा. क्वेश्चन नंबर 7. डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर मॉडिफाइड इन देयर व्हाट? ओके, डेजर्ट प्लांट उसमें उनका जो है फूड और वाटर किसमें स्टोर करते हैं? तो यू नो दैट डेजर्ट प्लांट दे यूज देयर स्टेम to store water, not leaves, no roots, no flowers. Now question number 8. Spines in cactus plants are modified forms of dash. तो कैक्टस में जो स्पाइन है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम्स बोलते हैं, लीव्स, रूट्स और फ्रूट्स. तो उसको क्या बोलेंगे? जो मॉडिफाइड स्पाइन्स, दीज आर नोन एज लीव्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स reproduces through its leaves?
इसके लीव्स से वो रिप्रोड्यूस होता है। आपको मैंने फिगर दिया है, देखो फिगर है यहाँ पे, देखो फिगर में से एक प्लांट ग्रो हुआ है, मीन्स प्लांट इटसेल्फ ग्रोज अदर प्लांट फ्रॉम दैट लीव्स ओनली। सो विच प्लांट इज देयर? ए ब्रोयोफिलियम, बी रोज, सी मैंगो एंड डी वीट। If you have seen this plant, you can directly answer, that is Bryophyllum. Okay, it is hard to pronounce, but it is like this. Question number 10. The transfer of pollen grains from anther to stigma is called what? Okay, stigma से anther में जो pollen उसका जो transfer होता है तो उसको क्या बोलते हैं? A. pollination, B. fertilization, C. dispersal, D. germination. Now see, I have already given the diagram of that. So here you can see pollination and this pollen grains from anther to stigma, they are transferring. So their process is known as pollination. So these are the 10 questions. Now we will go for some more questions. Now question number 11. Dandelion seeds are dispersed mainly by. Now see, this is the picture of dandelion flower. Okay, so dandelion seeds, their seeds are there. They are mainly dispersed. डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, ट्रांसफर होना. मेनली बाय व्हाट? ए वाटर, बी विंड, सी एनिमल्स, डी एक्सप्लोजन. तो हियर आंसर इज विंड, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे रेसा जैसा लग रहा है कि आपको आपने देखा कि प्लांट तो कहीं बहुत सारी जगह पे होता है. तो यहाँ से जो सीड्स है उसका वो रेसे के साथ उड़ के आगे चलता है, तो वो किससे भी ट्रांसफर होगा? तो विंड से होगा. क्वेश्चन नंबर 12. लोटस सीड्स एंड फ्रूट्स आर मेनली डिस्पर्स बाय. लोटस के जो सीड्स है और उसके फ्रूट्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? तो आंसर ऑप्शन है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. तो हियर आंसर इज बी, बिकॉज लोटस इज ग्रोन इन वाटर इटसेल्फ. तो वाटर में ही होगा, तो ये वाटर आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following animals is an omnivorous? Omnivorous means herbivorous means plant eating, carnivorous means animal eating, and omnivorous means both eating. तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? टाइगर, ऑप्शन ए टाइगर, इट इज कार्निवर्स. बी काउ, इट इज herbivorous. सी ह्यूमन एंड डी डियर, डियर इज ऑल्सो herbivorous. तो ह्यूमन इज देयर who is eating both meat or non-veg as well as plants. So answer is C, human. Now question number 14. Animals that eat only plants are called. जो एनिमल्स से ओनली प्लांट खाते हैं, अभी मैंने बताया उस तरह से. ऑप्शन ए हर्बीवरस, बी कार्निवर्स, सी ओमनिवर्स एंड डी स्कैवेंजर्स. नाउ सी, इसमें प्लांट ईटिंग एनिमल क्या बोलते हैं? उसको हर्बीवरस बोलते हैं. ये कार्निवर्स मीन्स एनिमल ईटिंग और मीट ईटिंग वट एवर. ऑमनिवर्स बोथ ईटिंग. एंड स्कैवेंजर्स मीन्स जो बचा कुचा जो बचता है, जो शिकार करते हैं एनिमल, उसके बाद जो भी जो बचता है उसके जो स्ट्रेसिस उसको खाते, जैसे क्रो है या फिर वल्चर है, वो सब इसमें स्कैवेंजर्स में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑर्गन हेल्प्स अ फिश टू ब्रीथ अंडर वाटर. फिश अंडर वाटर जो ब्रीथ करती है, जो सांस लेती है, तो उसका कौन सा ऑर्गन काम आता है? तो ऑप्शन है लंग्स, बी गिल्स, सी स्किन और डी स्पाइरेकल्स. तो आंसर क्या आएगा उसका? सांस लेने में कौन हेल्प करता है पानी में? दो बी गिल्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सम मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 16. Frogs can breathe underwater through their dash. A. lungs, B. moist skin, C. gills and D. mouth. Now see, frog से उसकी स्किन जो होती है, वो स्किन से वो सांस लेते हैं. कहाँ पे? अंडर वाटर. सो उसका आंसर आएगा बी मोइस्ट स्किन. मोइस्ट मीन्स गिली स्किन. आप वेज वाले बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई. यहाँ पे
4 ऑप्शन दिए हैं, ए पेंगुइन, बी स्पैरो, सी ईगल, डी पिजन। तो कौन सा फ्लाई नहीं कर पाएगा, तो इट इज़ वेरी इजी आंसर पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 18, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम मिल्क आर। जो एनिमल्स है वो अपने जैसे यंग वन को, अपने ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग है तो डॉग के जो बच्चे थे, कैट है तो, और उसको फीड भी करते हैं, मिल्क पिलाते हैं, तो वो एनिमल को क्या बोलते हैं? ए मैमल्स, बी रेप्टाइल्स, सी एम्फीबियंस और डी बर्ड्स। तो इसका आंसर आएगा भाई मैमल्स। मैमल्स जो है एनिमल्स, दोज हु गिव द बर्थ टू देयर यंग वंस एज वेल एज दे फीड मिल्क देयर यंग वंस। रेप्टाइल्स मीन्स जो स्नेक्स और सब है। एम्फीबियंस मीन्स दोज हु आर लिविंग वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। बर्ड्स यू नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is a nocturnal animal active at night? nocturnal मतलब जो रात में एक्टिव होता है, वो कौन सा एनिमल है? तो ए आउल, बी क्रो, सी काउ, डी बटरफ्लाई। तो ये 4 में से कौन सा भी रात को दिखना मिलता है? सबको पता है रात को दिखता कौन है भाई? उल्लू। उल्लू मीन्स आउल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, the thick layer of fat under the skin of polar bears is called what? जो polar bears जो polar region में देखने को मिलते हैं, ओके, उसके अंदर जो उनका जो स्किन है, थिक लेयर होता है स्किन के अंदर, फैट के अंदर, तो वो स्किन के अंदर जो फैट का लेयर होता है थिक, उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है ए ब्लबर, बी फर, सी स्केल और डी कैमोफ्लेज। तो इसका आंसर आएगा भाई ए blubber, sorry. Okay, now we'll go for some more questions. Question number 21. Now see, your first question is, camouflage helps animals too. Camouflage means क्या होता है भाई? The way in which animals color or shape matches its surrounding and makes it difficult to be spotted. कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? कैमोफ्लेज मीन्स आपको चैमिलियन जो है, ओके, जिसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? चैमिलियन को क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, सॉरी हो। तो चैमिलियन है या फिर अदर एनिमल से जो जैसा उनके आसपास का सराउंडिंग है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग दे चेंज देयर कलर्स एज वेल एज देयर डिजाइन। सो हियर इट इज नॉन एज कैमोफ्लेज। सो एनिमल को प्रोटेक्ट के लिए गॉड ने ऐसी गिफ्ट दिया है कि उसको जो कोई भी उसका हंटर आए या कोई शिकारी आए तो उसको जंगल में या कहीं पे भी उसको मार नहीं सके, उसको बचाने के लिए भगवान ने उनको एक ब्लेसिंग दिया है। तो दे कैन चेंज देयर कलर एंड शेप। यहाँ पे दिखा है मैंने, कलर और शेप। एक कैमोफ्लेज का मतलब ही डेफिनेशन ये होता है, ओके। सो कैमोफ्लेज हेल्प्स एनिमल टू। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से ही। तो क्या है? हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स मीन्स हंटर्स, और शिकारी उनको जो दुश्मन। नाउ 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक बेयर्स इज नॉन एज। जो कई एनिमल्स है जो बेयर्स जैसे वो विंटर में बहुत लॉन्ग स्लीप करते हैं, उसको क्या बोलेंगे भाई? जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल है कई कई सीज़न में आपको देखने को नहीं मिलते, फिर वो सीज़न ख़त्म होगा तब आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑप्शन ए है, ए एस्टिवेशन, बी हाइबरनेशन, सी माइग्रेशन, डी एडेप्टेशन। तो क्या है? उसको बोलेंगे हाइबरनेशन बोलेंगे। बहुत सारे एनिमल है जो आपको सीज़न में विंटर में बहुत सारे एनिमल आपको दिखेंगे नहीं, और समर आएगा तुरंत वो प्रकट हो जाएंगे। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग एनिमल है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फिर बाद में वो बाहर निकलते हैं, ओके। आपने देखा होगा कि मानसून में आपने बहुत सारे रेप्टाइल्स है जो मानसून में बाहर निकलते हैं, और जैसे ही विंटर और समर में भी देखने को मिलते हैं। विंटर जैसे आएगा तो आपको सांप वो सब रेप्टाइल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग इन हाइबरनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द समर स्लीप ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड व्हाट। जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं एनिमल, वो समर स्लीप मीन्स वो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका वर्ड अलग है,
विंटर है उसको हाइबरनेशन बोलेंगे, समर है उसको क्या बोलेंगे, तो ए हाइबरनेशन, बी एस्टिवेशन, सी एविएशन, डी ग्रूमिंग। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे जो समर में चले जाते हैं हाइबरनेशन में, हाइबरनेशन मतलब विंटर में, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड टू वार्म रीजन्स इन विंटर इज। विंटर का जैसे ही सीजन आते हैं बहुत सारे बर्ड्स है वो पूरा मास मूवमेंट, पूरा मास मीन्स ऑल टूगेदर, नॉट सिंगल बर्ड, पूरा का पूरा ग्रुप है वो कोल्ड रीजन से वार्म रीजन, जो सर ठंडी से गर्म रीजन में चले जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑप्शन है माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो माइग्रेशन आंसर है 24 का। नाउ 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेक्वेट प्लांट, सॉरी एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन सा है, ए हाइड्रिला, बी नीम, सी ऑक एंड डी पाइन। ओके, तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या आएगा भाई, जो एक्वेटिक मतलब द प्लांट विच इज ग्रोन इन वाटर, वाटर में जो प्लांट ग्रो होता है उसको बोलेंगे एक्वेटिक, तो यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रिला। ओके, आंसर इज हाइड्रिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स लाइक डकवीड हैव, डकवीड जो है प्लांट उसको क्या होता है, तो ऑप्शन ए लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडीज, बी थिक वुडी स्टेम्स, सी डीप रूट्स एंड डी स्पाइंस। ओके, तो डकवीड है तो आपको समझ में आ गया, वीड मतलब वन टाइप ऑफ ग्रास, तो कैसा होगा, ग्रास की बॉडी कैसी होती है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट एंड स्पॉन्जी बॉडीज, तो आंसर इज, इसका आंसर आएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द वुडन हाउस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन कश्मीर इज कॉल्ड, कश्मीर में जो है वुडन हाउस है उसको फ्लोटिंग करता है पानी में, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज स्टिल्ट हाउस, ऑप्शन बी इज हाउस बोट, ऑप्शन सी इज इग्लू एंड डी इज टेंट। ओके, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि हाउस ऑन बोट, ऑलरेडी इसमें लिखा है फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो बोट, तो आंसर इज हाउस ऑन बोट। इग्लू है वो स्नोई रीजन में होता है, टेंट है वो आपने देखा होगा, टेंट कपड़े का या किसी का बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नाउ, लाइकन इज अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गा एंड ए। ओके, तो उसका किसके दोनों का ये लाइकन किन दोनों का रिलेशनशिप है, एल्गा एंड दूसरा कौन सी चीज़ है, तो ए फंगस, बी बैक्टीरियम, सी वायरस एंड डी प्रोटोजुआ। ओके, तो इसका आंसर 28 का देखेंगे आंसर, तो आपको क्या आएगा, फंगस। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज पैरासाइट प्लांट डेट लिव्स ऑन अदर प्लांट। पैरासाइट का मतलब भी होता है, ऐसा होता है कि दूसरे पे डिपेंड करता है, जिसको हम गुजराती में यहाँ पे बोलते हैं बीपीएल, बापाना पैसे लीला लेर। ओके, तो इस तरह से पैरासाइट भी दूसरे पे डिपेंड करता है, और वो प्लांट कौन सा है, तो ए कस्टूटा मीन्स डोडर, बी नीम, सी पी और डी मैंगो। तो इसमें आंसर आएगा 29 का भी आपका आएगा आंसर ए कस्कुटा और डोडर उसको बोलते हैं। ओके, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम, मशरूम्स है उसका फूड उसको किस में से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सनलाइट, बी डेड एंड डिकेइंग मैटर, सी इंसेक्ट्स एंड डी एयर। और मशरूम का आपको पता ही होगा, मशरूम कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो उसको सनलाइट की ज़रूरत कम होती है क्योंकि मानसून में ज़्यादा उगते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ प्लांट, एयर भी कम चाहिए। वो कहाँ पे आए देखने को मिलेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, मशरूम जो लोग खाते हैं वो थोड़ा ध्यान से खाए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट डू वी ईट। पोटैटो जो हम खाते हैं, ओके आलू, उसमें कौन सा पार्ट खाते हैं, तो ए है रूट,
बी है अंडरग्राउंड स्टेम, सी है फ्रूट और डी है लीफ। ओके, तो पोटैटो में क्या खाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं। ओके, वी आर नॉट ईटिंग रूट बिकॉज इट इज़ नॉट रूट, फ्रूट्स नहीं है, वो सब्जी है। लीफ भी नहीं खाते, तो आंसर इज अंडरग्राउंड स्टेम। क्वेश्चन नंबर 32, कैरोट एंड रेडिश आर मॉडिफाइड। कैरोट एंड रेडिफाइड को मॉडिफाइड क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेम्स, बी रूट्स, सी लीव्स एंड डी फ्लावर्स। ओके, आपको पता है कैरोट और रेडिश क्या है, तो क्या है क्या भाई? कैरेट एंड रेडिश आर, रेडिश मीन्स मूली, कैरेट मीन्स गाजर, तो एक उसका क्या आएगा? मॉडिफाइड फॉर्म इज रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ओनियन इज मॉडिफाइड। ओनियन क्या है भाई? अंडरग्राउंड लीफ है या बल्ब है, ए बी रूट है, सी फ्रूट है या डी सीड है। तो ओनियन है वो अंडरग्राउंड लीफ है, अंडरग्राउंड में लीफ उसके ग्रो होते हैं। ओके, आपने देखा होगा ग्रीन ऑनियन, उसमें आपको लीफ देखने को मिलते हैं अंडरग्राउंड में से बाहर निकलते हुए, तो ऑनियन इज अंडरग्राउंड लीफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, जिंजर इज अंडरग्राउंड व्हाट। जिंजर मतलब अदरक, तो वो स्टेम है, रूट है, फ्लावर है कि फ्रूट है। ओके, तो जिंजर भी आपका है, वो क्या है भाई? आपका स्टेम है, वो रूट नहीं है। ओके, पोटैटो के जैसे वो भी स्टेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनियस प्लांट दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। कौन सा प्लांट है वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है? जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन मिक्स करता है, कौन सा है? तो ए पी, बी राइस, सी वीट एंड डी मेज। ये सब क्या है भाई? ग्रेन्स है। और ये है आपका पल्सीज, जो भी पल्सीज है मोस्टली वो लेग्यूमिनियस प्लांट है, वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए पी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट इज डैश। लेग्यूमिनियस मीन्स प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड। लेग्यूमिनियस क्या बोलते हैं? जो इनसाइड उसके अंदर जो पोड होता है, पोड मीन्स आप बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको? जो सिंग बोलते हैं ना, सिंग। जैसे कि पी है, पी का पूरा कवर आप खोलेंगे तो उसके अंदर से ये ऐसे दाने वाड़े निकलते हैं ना अंदर से। ओके, मटर, तो वो मटर है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट, जो प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड पोड्स। पोड्स मीन्स सिंग, राइट। नाउ सी, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज, उसको उस प्लांट को क्या बोलते हैं? तो जो कौन से बैक्टीरिया उसमें आएंगे? तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ सीड स्प्राउटिंग इनटू अ यंग प्लांट्स सीडलिंग इज दैट। जैसे आपने प्लांट ग्रो किया तो 1-2 दिन के अंदर उसमें से ये जो सीड था, ये पूरा सीड ऐसे था। ओके, फिर उसमें से क्या होता है? इसके 2 टुकड़े बन जाते हैं। 2 टुकड़े में अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता आपको, ऐसे 2 पीस बन जाते हैं, बीच में से ऐसे फट जाता है सीड। ओके, स्प्राउटिंग इनटू यंग प्लांट, और फिर इसमें से एक प्लांट निकलता है, ये प्लांट बन जाएगा फिर। तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे? तो इट इज नॉन एज ए जर्मिनेशन, बी पॉलिनेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी इवोपरेशन। इवोपरेशन तो मतलब क्या है? इवोपरेशन मतलब जो वाटर वेपर होता है पानी में से। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो प्लांट्स मेकिंग फूड। पॉलिनाइजेशन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर होता है वो। जर्मिनेशन मीन्स जो ग्रो होता है, स्प्राउट होता है प्लांट, उसको जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। 38, एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। कोई भी सीड को आपको ग्रो करना है, जर्मिनेट करना है, मीन्स ऐसे आप स्प्राउट करना है या उसको उगाना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? बेस्ट कंडीशन। एसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट कंडीशन, सबसे ज़रूरी। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। क्वेश्चन ऑप्शन ए है वाटर एंड वार्मथ। वार्मथ मीन्स गर्मी। बी सॉइल, फर्टिलाइजर एंड लाइट। सी डार्कनेस, आइस एंड सॉल्ट। एंड डी प्लास्टिक, ऑयल एंड एयर। अभी कोई भी प्लांट के लिए प्लास्टिक जरूरी होता है कभी? तो नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, राइट।
नाउ डार्कनेस आइस, अभी कोई प्लांट को ग्रो करने के लिए यहाँ पे आइस की कोई ज़रूरत और सॉल्ट की ज़रूरत होती नहीं है पहले स्टार्टिंग में। नाउ सॉइल फर्टिलाइजर एंड लाइट, फर्टिलाइजर कब चाहिए, पहले उसको लिए थोड़ा एयर भी चाहिए, एयर के बिना वो ग्रो हो तो हो नहीं पाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो आंसर इज ए, वाटर, एयर एंड वार्मथ। वार्म मतलब गर्मी या लाइट। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पी पोड्स ब्रस्ट ओपन व्हेन ड्राई टू डिस्पर्स सीड्स बाय। जो पी पोड्स है वो ब्रस्ट मतलब टुकड़ा बना, ओपन व्हेन ड्राई टू डिस्पर्स सीड्स, कब वो ओपन होते हैं। तो उसका आंसर क्या है कि भाई ए, एक्सप्लोजन, मैकेनिज्म, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। वो किस तरह से वो डिस्पर्स होता है, उसमें कैसे फटता है, तो विंड से फटता है नहीं, वाटर से नहीं, एनिमल से भी नहीं। तो क्या है कि उसका आंसर है कि एक्सप्लोजन मैकेनिज्म। एक्सप्लोजन मैकेनिज्म अपने आप फटना, जो बॉम्ब फटता है एक्सप्लोजन होता है ना, तो ऑटोमेटिक फटना, डेट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन मैकेनिज्म। तो जो पी पोड्स जो ब्रस्ट होता है सूखने के बाद, आप जो बोलते हैं ना उसकी जो मटर की जो होती है वो सूखने के बाद डायरेक्ट ऑटोमेटिक जो निकलता है तो अपने आप फट जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, जेनेथियम सीड्स हैव हुक्स दैट हेल्प देम डिस्पर्स बाय। जो जेनेथियम सीड्स है उसको डिस्पर्स में क्या यूज होता है, तो ये आंसर ए, सॉरी ऑप्शन ए है, अटैचिंग टू एनिमल फर। एनिमल का जो फर होता है उसकी जो ऊपर का पार्ट होता है जो हेयर बोलते हैं उसके साथ, फिर या फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी के साथ, या फिर ब्लोइंग इन विंड, विंड में ब्लो होने के बाद, या फिर एक्सप्लोडिंग या एक्सप्लोजन के साथ। तो आंसर क्या है कि भाई इसमें, तो ये सीड जो जेनेथियम सीड से वो अटैचिंग टू एनिमल फर, एनिमल के फर में फंस जाते हैं, बाद में वो एनिमल कहीं पे जाता है तो वहाँ पे वो फिर ग्रो होता है प्लांट। क्वेश्चन नंबर 41, टुडे वी आर टेकिंग 50 क्वेश्चंस ओनली, इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक some more questions. So question number 41, animals that eat dead animals and help clean the environment. एनिमल्स जो डेड एनिमल को खाते हैं या फिर एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ए स्कैवेंजर्स, बी हर्बीवरस, सी प्रोड्यूसर्स और डी पैरासाइट्स। मैंने आगे बता दिया है आपको, जो एनिमल जो बचा कुचा जो पड़ा है वो खा जाते हैं, जो क्रो है या फिर वल्चर है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे स्कैवेंजर्स। तो इसका आंसर आएगा स्कैवेंजर्स। क्वेश्चन 42, वल्चर एंड क्रो आर एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने बता दिया ऊपर ही, तो कौन सा आएगा, स्कैवेंजर, प्रोड्यूसर्स, डेकोमोपोसर्स एंड हर्बीवरस। तो क्या आएगा इसका आंसर, भाई एकदम इजी आंसर है, तो इसका आंसर आएगा स्कैवेंजर्स। ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर। जब जो कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है या फिर जो सॉइल है उसके अंदर मिक्स होने के बाद जो भी होता है उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो 43 में क्या आएगा, ए डीकम्पोजर्स, बी कार्निवरस, सी हर्बीवरस एंड डी प्रेडेसेसर्स। तो क्या आएगा इसमें, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज करना, कोई भी चीज़ है जो डीकम्पोज होती है तो उसको डीकम्पोजर बोलते हैं। 44, earthworms are called farmers friends because they, earthworms है जो उसको क्या बोलेंगे, फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑप्शन ए लूजन एंड एरेट सॉइल, ईट पेस्ट, प्रोड्यूस सीड्स और प्रोवाइड लाइट। तो क्या करते हैं अर्थवर्म करते क्या है, तो वो पूरा ज़मीन है उसको डिग करते हैं, मीन्स खोदते हैं और उसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो लूजन द सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन यूजिंग बाय डैश, ए रेड अर्थवर्म्स, बी स्नेक्स, सी लॉक्टस एंड डी बटरफ्लाइज। तो इसका आंसर आएगा भाई ए। सी मोस्टली आंसर हमने ए ही रखा है कि आपको लर्न करने के लिए इजी रहे इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 46,
विच एनिमल यूजेस इकोलोकेशन टू नेविगेट इन द डार्क, अगर नेविगेट करना है उसको डार्क में तो वो कौन सा एनिमल इको लोकेशन यूज़ करता है। इको मतलब वो अवश्य, तो ए बैट, बी कैट, सी डॉग और डी हॉर्स। तो उसमें क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा आपका ए, वो है आपका बैट। क्वेश्चन नंबर 47, स्नेक स्मेल देयर सराउंडिंग्स यूजिंग देयर, स्नेक्स जो होते हैं सांप, उसको अपने आसपास का सराउंडिंग का स्मेल कैसे करते हैं। तो ए फॉर्क टंग, बी नोज, सी स्किन एंड डी ईयर्स। तो उसका टंग को बताया, फोर्क वाला टंग बताया, जो आगे दो भाग होते हैं इसलिए फोर्क बोलते हैं। तो फोर्क टंग से वो पता चल जाता है कि सराउंडिंग में कौन सी स्मेल करनी है। 48, स्नेक्स हियर साउंड वाइब्रेशंस थ्रू द, स्नेक्स को वाइब्रेशन कैसे पता चलेगा भाई, ग्राउंड बोन्स, एक्सटर्नल ईयर्स, आईज और नोस्ट्रिल्स। तो उसका आंसर आएगा ए ग्राउंड बोन्स। क्वेश्चन नंबर 49, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ, किसके कोकून में से भी सिल्क मिलता है, सिल्क वर्म, हनी बी, अर्थवर्म और स्पाइडर। तो सिल्क वर्म से ही भाई मिलता है, तो आंसर विल बी सिल्क वर्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेरिकल्चर रिफर्स टू द rearing ऑफ डैश, ए सिल्कवर्म्स, बी फिश, सी बीज एंड डी पोल्ट्री। तो सिल्कवर्म को जो रेयरिंग करते, रेयरिंग मतलब जो उछेर करते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेरिकल्चर। तो आंसर इज सिल्कवर्म। ओके, सो थैंक यू सो मच watching this video. Now we'll meet in another video. Thank you very much.